अच्छा, सजल ने एक डाउट पूछा है, काफी सही डाउट पूछा उसने कि अगर हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं कि हाँ यार बिल्कुल कर सकते हो। हम वर्कशॉप्स कर रहे होंगे अभी, ओरिएंटेशन में बताएंगे, वर्कशॉप करवा देंगे तुम्हारे लिए, हम सिखाएंगे भी, वन ऑन वन भी सिखाएंगे तुम्हें। तो आंसर यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इफ यू हैव लाइक इन स्किल्स इन माइनस, देन आल्सो यू कैन ज्वाइन। ठीक है, इससे अच्छा आंसर क्या है दूंगा मैं। ठीक है ना सजल? अच्छा सजल जी डाउट पूछी चले गए। दीपांशु पूछ रहे हैं टेल मी समथिंग अबाउट द सोसाइटी। मतलब ओरिएंटेशन उसके लिए रखी है, जस्ट वेट 2 मिनट्स, या थोड़ा लेट हो गया पर कर लेते हैं थोड़ा भी। ठीक है, तो व्हाट इस सोसाइटी इज ऑल अबाउट, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के, यू विल डेफिनेटली ज्वाइन। सो वेट करो थोड़ा। नमन, यस ग्रुप पे एक बार फाइनल कॉल कर दे कि वी विल बी स्टार्टिंग शार्प एट 7:10। 7:10 हाँ 7:10, इफ somebody wants to join वो कैन ज्वाइन नाउ, फिर हम 7:10 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? हाँ आदित्य यार, तू वर्कशॉप बिल्कुल है, पहले से आएगा तो प्लस पॉइंट ही होता है, नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिखाएंगे तुम्हें। चलो एट 7:10 वी कैन स्टार्ट नाउ। आलमकृति वी कैन स्टार्ट। यस सर, तो आ गए हैं सब? श्योर? हाँ जितने ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, I am Alankriti, an EC sophomore at NSUT and also the event management head of Shakespeare, who along with my peers and seniors will carry on this orientation. Shakespeare NSUT stands atop a highly admired motto that is wit and hilarity. Currently, we are centered in the main campus and will expand to the others in due time. Every human being observes and tries to make sense of their physical surrounding. The processing of that absurdity is often addressed by humor. Shakespeare will tap exactly into that and provide you with an outlet. Will ask you to portray any wit you possess, either in writing or speech. Will organize anything and everything from open mics to written records. Though we are a firm and tested unit, we still offer immense room for modification and evolution of this very idea, the sky being the limit. We will entertain doubts and queries. As we progress into a session, your questions will be met with vivid answers. कैसा लगा? मुझे पता है सब यहाँ पे सोच रहे होंगे कितना इंग्लिश झाड़ रहे हैं भाई, बट टेंशन मत लो यार, जितना ही बोरिंग साउंड कर रहा था उतना ही फन रहेगी ओरिएंटेशन. So we have our 4 amazing founders, Amol, Shreyash, Aman and Divyanshu, who will themselves explain to you the ideology behind Shakespeare. But before that, Manasvi will take you through the journey of this year-back startup. Chill करना everyone. I know थोड़ा formal sound कर रहा है अभी तक, but सह लो थोड़ा यार. Over to you, Manasvi. Manasvi, तुम Hello mute है यार. I just figured that. Sorry for the delay. It's okay. Hello everyone. So I am Manasvi, a Max sophomore, and I myself joined. So I'll just take you over to the Shakespeare NSUT, the journey abhi tak, and what also we plan to do आगे भी. So outline of the entire meet, or you can say just the PPT. It's about what we'll talk about Shakespeare, about our pursuits and practices, about the events we conduct, about our achievements, about the Shakespeare Journal, the future trips, and also obviously the reason you all are here, the audition process. So about us. So we at Shakespeare NSUT will be conducting open mics periodically to provide an outlet to your talent or fascinations. Art is something which is always appreciated. So these open mics will be legit and literally open to everybody who wants to work with the mic, whether it's a poetry, whether it's stand-up, whether it's a piece you want to enact on the mic or anything. This attracts comedians, poetry, storytellers, beatboxers, providing you an open stage, your knowledge of which is untenable. On the verge of being incubated in the university, and so Shakespeare NSUT is now a society. 1 year ago, this is a college incubated startup. So I guess idea तो pretty good है ही. So saw participants from all over the nation. The Shakespeare Journal, a distinct disposition, will be a magazine which will be like
released every semester. So yeah, to foster social and intellectual activity among students, providing them a conducive place where they can monetize a skill. Again, we'll be conducting open mics and the Shakes Journal. तो आगे और बताते हैं. Pursue and practices. What will be this society all about for you? So this society does not have a strict hierarchy. We are a cordial group. We can message any third year or fourth year which we are. We do not have the practice of calling sir or ma'am here. We work together as a team, not as we do not follow any hierarchy. Everyone is welcome to share their opinions and are expected to do the execution. Organizers and participants form an aura of great compatibility. We have contacts in the DU circuit of the comedians, and we work well with them. We work together with them. So, post pandemic, we all plan to get back to the offline open mics and our offline events as well. Fervorous and youthful conduct of open mics, keeping in mind an individual's process and progress. Various positions and commands like illustrators, designers, authors, artists, humorists, poets, editors, anyone and everyone is welcome here. You are the very first batch of Shakespeare to work with founders. A definitive plan of action, yet enormous freedom for one to work, perform, and experiment. So again, guys, this is a society where we plan to have everyone and anyone who can work, who has ideas, who is bored, and can just come up here and speak and give ideas and execute. So yeah, events we conduct. So first of all, I'd like to explain you this image. This is the image of the last offline event Shakespeare conducted. It was an open mic in the college itself. Shrikant, one of our founder, was performing here. He's not visible, but the audience clearly is, and the laughs are. So, planning to conduct a colossal and dynamic festival in Delhi, bound to attract the majority of pedagogy. Delhi comics, we have connections in the Delhi circuit itself, attracting to our open mics some comedians like Mr. Adil Rahman, for instance. Then Shrikant, the one who is performing in this photo as well. The founding member graced 50 plus open mics in Delhi, acclaimed for his wit and humor. Shakes Journal. So this is a magazine, and this was again one of the ideas of our founders, and a very deeply loved idea and felt idea, I would say. So what's this all magazine all about? Humor is equally practical as theoretical. We need to perform humor, and it needs to set with a right audience as well. Commentary by various people on their social and observational lives, executed with charm and wit. Garnered with the faith of readers, with time, the magazine will be sponsored / monetized. We plan to have this magazine in some way sponsored or monetized. Again, opening doors to lots of opportunities of learning as well as making connections in the real world. Built from scratch, there will be a massive room for creativity and ingenuity. Obviously guys, मतलब हम लोग कुछ भी अगर पूरा स्क्रैच से बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो there will be room for everyone and everything, whichever thing you want to add, subtract, just speak up and anything. Will ripple across campuses, societies, HR departments, etc. So not only will this magazine help you get it will get you recognition and all, but also it will be a magazine which will be distributed amongst the HR of
various corporates as well, which will again provide you with connections and your name on the our teams or like the team of Shakes Journal magazine, providing you again with an opportunity to write in your CV and better your CV with it. We provide a concrete networking opportunity to build relations, applications, and recruitment. So, the reason why you all are here कि कैसे अंदर आएंगे, क्या क्या कर सकते हैं हम इधर एंड एवरीथिंग. तो for now, there will be online rounds to evaluate yet not quantify or limit your skills. So we are going with online rounds now, but we plan to shift it to offline if the college opens and if we have the permission to do so. There will be offline rounds will also be conducted. So we can get to know you better and everything. And again, offline round में सामने बात करने में ज़्यादा मज़ा आता ही है. Open mics. So we talked about open mics पहले भी अभी भी. Open mic artists are welcome. We will be organizing open mics. So the event management, anyone who wants to apply for event management is welcome. Logistics, mic, sound check, PR, media, marketing, everything. Like we'll be doing literally everything here. Any skill you possess or you want to learn can be learned here. So that's it. That's for the open mics things. For Shakes Journal, we'll be needing thinkers, writers, illustrators, editors, candidates with oration and marketing skills, etc. Again, for Shakes Journal, we'll be focusing on the and we'll be monetizing the magazine. So we'll be needing people to get the ads and get the sponsorships and all. So yeah, that's what we'll be looking for people in the Shakes Journal. But this said, this is not a place where anyone is said कि नहीं यार हम नहीं ले सकते. Anyone with the zeal to learn, anyone with the zeal to perform and contribute to in any way is most and utmostly welcome. Everyone here is welcome. For the recruitment, you guys can scan this link. मतलब this slide will be on abhi continuously, but still we are presenting some more few things. Some डेमो देते हैं कि क्या क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या कर चुके हैं, तो उस चीज़ के लिए. अदरवाइज यू गाइज कैन स्कैन दिस लिंक अभी to for the recruitment form and everything. For any queries, you can contact any of the admins on the groups, or some contacts are even mentioned here specifically. तो वो भी. Over to you, Alankriti. So thank you, Manasvi. Now we will just like to show you a glimpse. जैसे कि मनस्वी ने बोला कि हम आपको बताएंगे, तो we'll like to show you a glimpse from the various online open mics we had conducted last year in the lockdown when Shakespeare was emerging as a startup. So yeah, you can start, Manasvi. कोरोना से अब जल्दी से पीछा छुड़वा दो मोदी जी. कोरोना से अब जल्दी से पीछा छुड़वा दो मोदी जी. अब लॉकडाउन को खत्म करा, ऑफिस खुलवा दो मोदी जी. और क्या बढ़िया. इसमें क्या शुरुआत है, पहला परेशानी मेरी क्या है कि धोना घर के बर्तन सब, धोना घर के बर्तन सब अब मेरी जिम्मेदारी है. धोना घर के बर्तन सब अब मेरी जिम्मेदारी है. और कुकर परात अब पता चला बर्तन ये कितने भारी हैं. इससे पहले इनके वेट का हमें अंदाजा नहीं था, अब मांझने में पता चलता है कि कुकर परात अब पता चला बर्तन ये कितने भारी हैं. और बर्तन धो धो कर हाथों में अब दर्द सहा ना जाता है. बर्तन धो धो कर हाथों में अब दर्द सहा ना जाता है. इस दर्द से मुक्ति दिलवाओगे कब दिल मेरा घबराता है.
सो बहुत बढ़िया कि मांझा मांझी से बर्तन की मांझा मांझी से अब मुझे बचा लो मोदी जी, अब लॉकडाउन को खत्म करा ऑफिस खुलवा दो मोदी जी। सो ये एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स था ये पोएट्री सेशन अखिलेश शर्मा के थ्रू. So now I would like to call our first founding member, Amol Singh, a third year IC student with a startling intellect and जिनका sleep schedule थोड़ा सा अजीब है, 9 p.m. to 3 a.m. है, who was then a sophomore when he with his peers thought of the idea behind Shakespeare as a startup. So may I call you Amol sir, please? आप म्यूट है अमोल सर. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. आप सही है ना? Yes, perfect. Thank you, Alexandri, for inviting me here. So, hello everyone. I hope I am audible and visible both. So, मैं स्टार्ट करूँगा अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ और साथ में थोड़ा बताता हुए रहूँगा कि कैसी जनवरी रही और क्या रहा. जितना तुम्हें शायद पीपीटी से समझ में आया हो ना, उतना मैं शायद तुम्हें यहाँ पे समझा दूंगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है. तुम बताने बाद में कैसे मैंने समझाया, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार ये शेक्सपियर की जर्नी के साथ. तो शेक्सपियर की जर्नी स्टार्ट हुई थी ईयर बैक इन फरवरी व्हेन आई वाज अ सोफोमर एज राइटली सेड बाय एलेक्स. तो इसका स्टार्ट कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मेरे क्लासमेट भी हैं, दोस्त भी हैं, मिस्टर शेर श्रीकांत. तो उन्होंने अराउंड 50 to 60 दिल्ली सर्किट में ओपन माइक करे हैं ऑलरेडी, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है. तो उन्होंने बोला यार हम ना कुछ ऐसा करते हैं कि मैं तो कर ही रहा हूँ अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि और लोग भी कुछ करें, उनको भी हम प्लेटफॉर्म दें और वो भी आगे बढ़े, ताकि हम तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, एनएसयूटी जैसे कॉलेज में, इतने अच्छे कॉलेज में अगर हमारे पास रिसर्चेज है, अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, बस सबके पास. तो वी थॉट ऑफ एन आइडिया to build a startup like Shakespeare, which will be providing some platform-like thing to all the upcoming talents. जिनको एक माइक और स्टेज दे दो, इनको एक माइक और स्टेज दे दो ना, तो कुछ भी कर देंगे. अगर बीट बॉक्सिंग और फिर कॉमेडी हो या फिर पोइट्री हो, मतलब कुछ भी कर देंगे. उनको माइक और स्टेज दे दो और एक जगह दे दो, तो कर देंगे. तो ठीक है, मतलब मैंने उनकी बात समझी श्रेयस की और उनको बोला ठीक है स्टार्ट करते हैं. तो हमने स्टार्ट करा, बिल्कुल रफली आइडिया था हमारा. हमने पीपीटी बनाई, सब बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई, जो भी इंक्यूबेटर, अपने एनएसयूटी में इंक्यूबेटर भी है. तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तुम बाद में अभी रियलाइज करोगे क्या काम होता है उसका. तो वहाँ पे स्टार्टअप के आइडिया लेके जाना होता है, पास हो जाता है तो आप कर सकते हो, आपको फंडिंग मिलती है. तो हमने प्रेजेंट करा वहाँ पे आइडिया. तो प्रेजेंट करने के बाद उनको काफ़ी पसंद आया और हमारा स्टार्टअप पहले दिन पे इंक्यूबेट हो गया. मतलब उनको पसंद आया तो उन्होंने बोला आप शो करके दिखा दीजिए और आपका काम हो जाएगा. ठीक है, वो तो इतनी बात थी. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम शो करने ही जा रहे थे मार्च में, तो बैड लक हिट विद कोरोना. सबके साथ ही था, हमारे साथ क्या, तो कोरोना ने हमें हिट कर लिया. तो हमने ऑनलाइन मोड में लिया शेक्सपियर को, हम क्या ऑनलाइन करेंगे. तो ऑनलाइन में भी डिडंट शूट, हम नहीं कर पाए, मतलब इतना अच्छा नहीं हो पाया, तो वी स्टॉप. तो फिर हमने देखा यार कॉलेज नहीं खुल रहा है, हम अपना इतना अच्छा आइडिया लेके बैठे हैं आराम से. तो हमने सोचा कि नहीं, अब नहीं रुकेंगे, वी विल स्टार्ट विद द सोसाइटी. हम प्रॉफिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा आइडिया जो है वो तो चलेगा ना. तो या इसके साथ शेक्सपियर की बैक स्टोरी क्या थी. अब शेक्सपियर क्या करेगा वो तो अच्छा, मनस्वी ने थ्रू अ वेरी गुड पीपीटी समझा ही दिया है. बेसिकली मैं रफ में बताऊं तो ओपन माइक कंडक्ट करा रहे होंगे. ओपन माइक में सिर्फ कॉमेडी नहीं होगी, जो भी तुम टैलेंट दिखा सकते हो अपना, उसके साथ माइक और स्टेज के साथ, जैसे मैंने बोला, तुम दिखा सकते हो. ठीक है, ये ओपन माइक की बात हो गई. सेकंड पार्ट, अब इसमें हमने एज एन सोसाइटी के बाद क्या एडिशन करा, जो स्टार्टअप का पार्ट नहीं था वो करा है इसमें हमने मैगजीन, जिसको हम शेक्स जर्नल भी बोल रहे होंगे. वो मैगजीन यार इतनी अच्छी होगी और तुम उसके क्रिएटर होगे. बेसिकली तुम्हारे घर में संडे को और आराम सैटरडे को भी कुछ मैगजीन आती होगी. तो हम पर सेमेस्टर एक इशू निकाल रहे होंगे, बिल्कुल वैसा नहीं, उससे 10 गुना 20 गुना और अच्छा निकाल रहे होंगे. उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास एक कंटेंट टीम होगी, हमारे पास ग्राफिक टीम होगी, हमारे पास इलस्ट्रेटर्स होगी, हमारे पास सब कोई डिपार्टमेंट होगा, तो अपना अपना काम कर रहे होंगे. और उसमें हम अलग अलग कैटेगरीज डालते होंगे. जैसे हमने डाला कॉमिक जर्नल डाल दिया, हम किसी पर्सनैलिटी का उसमें इंटरव्यू ले रहे होंगे, बिग पर्सनैलिटी का, ताकि हम उसको छाप सकें, उसमें अपने में लगा सकें. और वो इंटरव्यू में तुम में से कोई एक लेने जा रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब एनएसयूटी इतना कोडिंग के फेमस कॉलेज है, तो अंकुर चिल्ला सर है कोडिंग इंडिया के फाउंडर, फॉर सपोज उनका इंटरव्यू ले रहे होंगे. जैसे हम उनका एक बार लेते रहता है, एग्री हो जाते हैं. ऐसे काम इसमें हम कर रहे होंगे, कहीं कॉमेडी लगा रहे होंगे, कहीं कुछ लगा रहे होंगे. मतलब ऐसे करके हम कंपाइल कर रहे होंगे. एट द एंड ऑफ द वेरी सेमेस्टर या बिगनिंग में 30 to 40 पेजेस की मैगजीन आ रही होंगी, काफी अच्छी. उसको फिर हम स्पॉन्सरशिप भी ले जाएंगे, बिजनेस स्टार्टअप से भी बात करेंगे. वो सारी बात की बात है कि हाउ वी विल मोनेटाइज एंड हाउ वी विल स्पॉन्सर. वो अभी मैं नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, वो 4 टीम में सिर्फ डिस्कस करना चाहूंगा. ठीक है, उन कैसे कर रहे होंगे, आगे क्या कॉलेज का प्लान है. ठीक है, मैगजीन का हो गया. तो हम क्या करेंगे, हम
ओपन माइक्स एंड मैगजीन स्टार्ट ओपन माइक एंड मैगजीन हम पेज टू पेज चलाएंगे, पैरेलली चलाएंगे, मतलब एक तरफ के डिपार्टमेंट चल रहा होगा, एक तरफ डिपार्टमेंट चल रहा होगा, जो प्रॉफिट इससे हो रहा होगा वो इसमें लगा रहे होंगे, जो इससे हो रहा होगा वो इसमें लगा रहे होंगे, मतलब हम काफी अच्छा इसमें काम कर रहे होंगे। तो सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तब अप्लाई तो करना ही, फिर आगे इंटरव्यू एंड इट विल बी शेड्यूलिंग सब कुछ इन्फॉर्म करते जाएगा अप्लाई करने के बाद। सो या यही मैं कुछ बोलना चाहता था बातें मेरी तरफ से फ्रॉम द फाउंडिंग मेंबर। सो या थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन, एंड किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मुझे डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं एडमिन हूँ शेक्सपियर एनएसडी फ्रेशर्स ग्रुप का। सो या थैंक यू, ओवर टू यू अलग। थैंक यू अमोल सर, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया सारी शेक्सपियर की 1 साल की जर्नी एज अ स्टार्टअप, जब शेक्सपियर स्टार्टअप था। सो मूविंग ऑन, we have our second founding member, Aman, who will brief you through our magazine, Shakes Journal. Hello guys. I mean apology, like मेरा वीडियो का इशू है, so yeah मूव ऑन करते हैं। एंड मोस्टली तो अमोल सर ने काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ अच्छे से कर दिया है, बट अगर मेरे को कुछ ऐड करना है तो अच्छा 1 मिनट यार, अनन्या का मैसेज आया है। ये सारे डाउट्स अभी हम लास्ट में लेंगे, तो थोड़ा वेट करना, ओके। एंड तो जर्नल में बेसिकली तो ये रहेगा। एंड तुम लोगों ने लाइक नोटिस करा होगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में लाइक बच्चों के कुछ ना कुछ टैलेंट्स होते ही हैं कि जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, बट लाइक कुछ अपने लाइक एफ बी इंस्टा पे दोस्तों को देखा होगा कभी शेयर करते हुए, तो हम वैसे वाली चीज़ें भी हम एक अलग से सेक्शन बनाएंगे ताकि उन लोग को भी हम लाइट पे ला सके और लाइक यू नो अपने पीयर्स का टैलेंट एक दूसरे को शेयर कर सके कि हाँ। तो एक ये आइडिया भी है कि हम एक दूसरे के टैलेंट को ज़्यादा अप्रिशिएट करें। और जो हमारे लास्ट एक दिव्यांशु सर है एंड शेयर सर का नाम सुन लिया है, सो या उन्हें ओपन माइक का काफ़ी आइडिया है। सो एक शेयर सर का ग्लिम्स है जब वो ओपन माइक का सेट कर रहे थे, तो वो मैं चाहूँगा कि अलंकृति जो शेयर करें इनके साथ। एंड ओपन माइक्स में यार ये सीन है ना कि अगर तुम लोगों में से किसी को यू नो स्टैंड अप के अंदर अच्छा करियर बनाना है एंड ऑल, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिहर्सल से करने होते हैं, तो इसलिए हम ये ओपन माइक्स पीरियडिकली करा रहे होंगे ताकि तुम्हें अपना स्टेज टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, ताकि तुम उस पर अपना काम करो एंड अच्छे से उसे होन कर सको। सो या मेरी साइड से इतना ही रहेगा एंड थैंक यू ऑल जिन्होंने भी अटेंड करा। एंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब एक बार शेयर सर का एक्सपीरियंस देखो कि उन्होंने कैसे करा एंड डाउट सेशन लेते हैं उसके बाद। कुल Yes. So thanks a lot, Aman sir. Taking the orientation forward, our PR head Naman Agarwal is here to catch the limelight on this virtual stage. So Naman, mic unmute kar do. Yeah. Hi guys, my name is Naman and I am a second year ECE student. So यार कॉलेज में तुम लोगों ने काफ़ी सोसाइटीज़ देखी होंगी, बट ये एकदम नई है सोसाइटी है, दिस इज टोटली डिफरेंट आइडिया। एंड अभी हमारे अमोल सर ने सब बता ही दिया कि कैसे मैगजीन होगी, किस टाइप से होगा। सो अब बाद में बात आती है कि तुम्हारे से पर्सनल गेन क्या हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कोर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उनको इसमें कुछ पर्सनल बेनिफिट्स भी हम मिल सकते हैं मैगजीन में के थ्रू। अब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में बेसिकली इतनी अच्छी CV हम लोग इनिशियली बिल्ड नहीं कर पाते या फिर बहुत मुश्किल होता है। एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हमारे पास थर्ड ईयर में आती है, टेक एंड नॉन टेक में ऑन कैंपस। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मेनली हमारे पास कंटेंट, ग्राफिक, इन सब की अपॉर्चुनिटीज़ होती है एंड मार्केटिंग। सो इन द मैगजीन जो हमारे कंटेंट राइटर्स होंगे एंड जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होंगे जिन्होंने इलस्ट्रेशंस बनाई होंगी, सो उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दे कैन पुट इट इन द CV कि उन्होंने हमारे मैगजीन के अंदर उनके पोस्ट हैं एंड उन्होंने आर्टिकल डाला है। तो इन दिस वे दे कैन लुक फॉर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड ओवरऑल इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमारी जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है एंड यू कैन DM एनी ऑफ देम। अगर तुम सोसाइटी का पार्ट भी नहीं हो तो भी तुम किसी को भी DM कर सकते हो अगर तुमको कोई डाउट है सोसाइटी से रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड। एंड रिक्रूटमेंट में ज़रूर पार्ट लेना, एटलीस्ट तुमको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड सी यू ऑल इन द रिक्रूटमेंट। ओवर टू यू, अलंकृति।
थैंक यू नमन. Our third founding member श्रेयस, जिनका हम लोग इतना नाम ले चुके हैं, वो आज हमारे साथ है नहीं. Unfortunately हमारे साथ आज प्रेजेंट नहीं है. But with his mini stand-up video, you will definitely feel his shadow. So मनस्वी वीडियो चला दे. स्क्रीन एंड वॉइस आ रही है मेरी भी इवन. Okay, yeah. आ रही है ना? Cool. Guys, let's give a big hand for Shreyas. So let me introduce myself. I'm आपको आवाज. But my name is Shreyash and let me tell you about myself. मेरा दिल बहुत बड़ा है. मुझे दान देना बहुत अच्छा लगता है. मैं कितना लोगों को. That's why मेरी इलेक्शन मैंने कांग्रेस को वोट दिया था. उनको 7 लाख लोगों ने पूछा. 7 लाख लोगों ने सोचा 15 लाख आए अभी लड़े. बट I'm so sorry. मैंने सोचा था जब कॉमेडी फाइट करूंगा तो पॉलिटिकल जोक्स करूंगा. तो 2-4 लोगों ने पीट दिया. तो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके मैं केजरीवाल का मदद करा. क्योंकि वो क्या ही करेगा. उसको जिसने थप्पड़ भी मारा था वहाँ पे आप बिजली का बिल नहीं भरता. Yes, guys, so even though we do not have Shreyash sir abhi, he is presently actually or conducting a Stand-up ही कर रहे हैं वो अभी. So still I'll just like to cover open mics वाला thing थोड़ा in detail थोड़ा सा और जो हमने अभी तक नहीं बात करी है. तो guys we'll be organizing the open mic. Open कोई भी event organize करने में ना सिर्फ एक बंद आकर स्टेज और माइक्स और स्पीकर नहीं लग जाते हैं. उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोगों को पीछे करनी होती है. वी हैव टू टॉक टू द कमेडियंस एंड द परफॉर्मर्स एंड हैव देम बुक्ड. उसके बाद कि टाइम पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. देन द हॉल बुक्ड एंड एज दिस विल बी दिस इन NSUT itself, क्योंकि हम अब एक सोसाइटी बन रहे हैं तो वील बी कंडक्टिंग दीज इन दी कॉलेज itself. तो कॉलेज में बुकिंग फॉर दी वेन्यू, बुकिंग फॉर दी ऑडियंस को ला रहे हैं, उनकी भी बुकिंग करें क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है. देन लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं और सारी चीज़ें कि बेवरेजेस है, ये है, वो है, टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं. फिर उसको मार्केटिंग कर रहे हैं. मार्केटिंग सारी की सारी हमारे एंड से होगी. देन वील हैव टू हैव दी कैमरामैन, रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, वो लाइव जा रहा है, ये जा रहा है वहाँ पे. मतलब इट्स लाइक एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में ना there is not a single thing, there is not 5 things, there is not 10 things, but there is so many things. And जब वो organize करते हैं तो वो पूरे process में बहुत मजा भी आता है honestly, because मैं I am the co-head of the event management with Alankriti and I am the head of the PR and marketing as well. तो वो सब चीजें जाती है and it's so much fun and it's so much satisfaction. And not just this, एक बार हम लोगों का पूरा इवेंट अच्छे से हो जाता है उसके बाद ऑब्वियसली सब लोग पार्टी करते हैं. अमोल सर जो हमारे फाउंडर है उन्होंने तो हमें प्री पार्टी भी प्रॉमिस कर रखी है इस समय फॉर फाइनली डूइंग दिस ओरिएंटेशन राइट एंड फॉर फॉर एस्टैब्लिशमेंट सोसाइटी बेसिकली. अमोल सर ध्यान रखना, कॉलेज खुल रहा है, आ रहे हैं हम लोग, पार्टी देनी है आपको. पक्का आपको पक्का एक और मिलेगी. तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज करने में भी. उसके अलावा PR, मेरे पास 1-2 डाउट्स है कि PR एंड मार्केटिंग क्या होता है. तो PR एंड मार्केटिंग में यार हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारा करवाते हैं. उसके बाद हम लोग कोलैबोरेशंस भी करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. सम स्टार्टअप, सम मीडिया पार्टनर्स, सम DU सर्किट वाले मीडिया पार्टनर्स भी होते हैं जैसे हम लोग बहुत सारे करते हैं. उसके अलावा हम लोगों के स्पॉन्सरशिप्स भी बहुत सारी होती है इवेंट के लिए भी. तो ये सारा का सारा काम आपका PR एंड मार्केटिंग में आता है, अपने इवेंट को प्रमोट करना एंड उसके साथ कोलैबोरेशंस एंड सारी चीज़ें लाना, विच इज़ अगेन समथिंग जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, not just to your CV but to your personality as well. It adds up to your speaking skills,
to your people skills and तुम्हारे खुद के experience and education में बहुत बड़ा role play करते हैं because this here we are interacting with the real life like real people and real world में enter कर चुके होते हैं हम लोग already contacts बनने start हो जाते हैं experience मिलना start हो जाता है तो yeah that's it for अभी कोई doubts है तो यार please पूछ लो we all are here to revert back to your doubts and everything. Everyone, now we are open to questions. कुछ भी हो chat box में लिख दो यार, we'll answer it. एंड एक बार ये सब लोग रिक्रूटमेंट फॉर्म के लिंक के लिए QR कोड स्कैन कर लेना. हम लोग रिक्रूटमेंट फॉर्म का लिंक ग्रुप पे भी डाल देंगे एंड चैट में भी डाल देंगे. कुछ डाउट है चैट पे मुझे आंसर कर दो, इसको आंसर करना. गाइस जो रिक्रूटमेंट होगा वो हम आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो आप उसका टेंशन ना लीजिए. यू कैन स्टडी फॉर योर एग्जाम्स. बस एक बार फॉर्म है उसको पढ़. हमारा रिक्रूटमेंट जब भी हो रहा होगा हम इंश्योर करेंगे आपके एग्जाम्स ना हो रहे हो उस वक्त. दिस विल बी इंश्योर. बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी कुछ भी मतलब एग्जाम्स के आसपास ना हो. एक वीक पहले नहीं होगा और एग्जाम्स के टाइम पे नहीं होगा. पढ़ो यार, एग्जाम्स के लिए पढ़ो. फर्स्ट सेमेस्टर है, बहुत अच्छी जीपीए ला सकते हो, लेके आओ. ऑल्सो एक चीज हम लोग मेंशन करना भूल गए जो मैं अभी कर देती हूँ. इधर अभी तक हम लोगों ने पूरा काम की बातें कर ली, सब कुछ कर लिया, बट उसके अलावा भी any of the seniors including me and the third years also Amol sir and Aman sir, Shreya sir, कोई भी जना is किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना. कैसे टीचर्स होते हैं, किस टीचर्स को कैसे हैंडल करना है वो भी पूछ लेना, क्योंकि ऐसा होता है यार कुछ टीचर्स की क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, कुछ की नहीं भी करो तब भी चलता है. तो वो सब कोई नोट्स की बात हो कि इधर इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो कोई भी डाउट हो कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज से नहीं भी रिलेटेड हो, बट अगर ऐसे कुछ होगा जो हम हेल्प कर पाएंगे हम लोग हेल्प कर देंगे. वी आर ओपन टू ऑल दी क्वेरीज एंड एक जनरल एज आई सेड पहले भी प्रेजेंटेशन में, दिस इज अ फैमिली काइंड ऑफ अ प्लेस. यहाँ पर थोड़ी सी भी हायरार्की नहीं है, तो बहुत चिल एटमॉस्फेयर है वो चीज़. ऑल्सो श्रेय सर ने बोला था मेंशन करने के लिए कि एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन स्टैंड अप एंड ओपन माइक्स में कैसा कल्चर होता है या कैसी चीज़ें होती हैं, उनको कुछ भी जानना है तो वो श्रेय सर को मैसेज कर सकते हो. उसके साथ साथ किसी को ओपन माइक्स में जाने के लिए ब्रिंगर वगैरह की पोजीशन भी खाली होती है. मतलब श्रेय सर ने बोला था इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड तो श्रेय सर विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है. उसमें पोजीशंस मतलब ब्रिंगर की पोजीशंस ओपन होती है, तो उसमें तुम लोगों को जाना हो तो यू कैन टैग अलोंग उससे भी. तो अगर इस सब में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज डू नॉट एवर लीव दैट ग्रुप, क्योंकि वो उधर ही अपडेट जाएंगी. हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया मनस्वी ने. कोई किसी को किसी भी चीज का डाउट हो तो सर हमें स्पेशली बोल के गए थे कि उनको कभी भी डीएम कर लेना, ग्रुप पे पूछना हो, जहाँ भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे उनसे डीएम कर देना. एंड अबाउट कि कुछ भी कॉलेज का डाउट तो यार प्लीज पूछ लिया करो, क्योंकि हमारे पास नोट्स होते हैं. अब व्हाट्सएप पे सब आता है तो समहाउ सेव्ड रह जाता है, तो नोट्स बुक्स वगैरह सब होती है. मेरे पास तो है एटलीस्ट, मेरी फर्स्ट सेम से लेके फोर्थ सेम तक वाली अभी तक. तो कुछ भी हो पूछ लेना, कभी भी डीएम कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी चीज के रिगार्डिंग, किसी और सोसाइटी का जानना है कि कैसी है या कुछ भी पूछ लेना यार. एंड गाइस यहाँ पे ना तुम लोग अगर तुमको कोई स्किल नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तुमको सिखा भी देंगे. काफी ज्यादा फ्रेंडली सीनियर्स हैं. एंड अगर किसी को परफॉर्म स्टैंड अप में जाना है तो शेयर सर को गाइड भी कर देंगे. सो किसी को इंटरेस्ट हो तो भर जरूर देना. फॉर्म का लिंक डाल दिया मैंने. और एक पॉइंट और है यार कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड पीछे ओरिएंटेशन अटेंड नहीं कर पाया तो पहली बात तो हम ओरिएंटेशन अपनी यूट्यूब पे कर रहे होंगे शेयर, और तब भी अगर उसको तुमसे पूछना हो तो उसको बता देना, ठीक है. तुम सब समझ गए होंगे क्या आइडिया है क्या पेशेंस सोसाइटी की, तो उसको शेयर करने से कतराना है बिल्कुल भी. कॉमेडी रिक्रूटमेंट की टाइम करनी है यहाँ नहीं. हर्ष कभी भी करो कॉमेडी, कभी भी करो. खुश रहो भाई, खुश रहना चाहिए, हंसो रहना चाहिए यार. बिल्कुल. नोट्स दे दो, मैसेज कर देना, दे दूंगी भाई. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ तो किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरे को या नमन को मैसेज कर देना. हम लोग, मैं और नमन दोनों सेम क्लास में सेकंड ईयर ईसी के हैं, तो हमारे पास जितना भी मटेरियल होगा हम शेयर कर देंगे.
What about improv comedy? वो भी होता है यार. Improv comedy again is a very tough art of comedy. But if you are interested, that's more than welcome here. मतलब more than welcome. हम लोग भी खुशी होंगे अगर तुम लोग आकर स्टेज पे इम्प्रोव करोगे. तो बहुत बड़ी चीज होती है वो. तो अच्छी चीज है अगर तुम लोग कर सकते हो तो यू आर more than welcome for do the improv. गुरकीरत ने पूछा है फर्स्ट ईयर्स का क्या रोल होता है, किस चीज के लिए? मतलब हमारी सोसाइटी में यार फर्स्ट ईयर्स का वही रोल है जो सेकंड ईयर्स का है, जैसा कि मैंने सोसाइटी ने में आ बोला. जाओ सब बता देंगे. वहाँ आ जाओ एक बार. मोर ओवर रोल की बात ये है यार कि तुम अलग अलग डिपार्टमेंट में असाइंड होंगे और जो डिपार्टमेंट का तुम्हारा नाम होगा बेसिकली सिंपल वाले तुम वही काम कर रहे होगे. फॉर सपोज तुम कंटेंट में हो तो तुम कंटेंट का काम कर रहे होगे. तुम जीडी में हो तुम जीडी का कर रहे होगे. तुम इलस्ट्रेटर हो तुम इलस्ट्रेशन बना रहे होगे. ये काम होता है बेसिकली. फॉर्म में तुमको जो डिपार्टमेंट तुम्हारी प्रेफरेंस का उस हिसाब से भर दो, तुमको उस हिसाब से रोल हम दे देंगे. बिल्कुल. और फिर कौस्तभ ने पूछा है किसी के साथ हुआ है अभी तक ऐसा कुछ? हाँ यार, हमारे कॉलेज में जब लास्ट ईयर हम लोगों ने एक बार किसी बात के लिए प्रोटेस्ट किया था तो हुआ था एंड सच में सीरियस एक्शन लिया गया. अरे बट अलंकृति वी आर मिसिंग आउट द पॉइंट कि ये लोग 2024 का बैच है. तुम लोगों ने इनकी हरकतें अभी तक पता नहीं तुम लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है. मैंने विटनेस करी है. तो ये लोग थोड़े कम डरते हैं. तो क्योंकि हाँ इनका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना, बट फिर भी यार मतलब मत करना. अगर वो अभी कुछ नहीं भी उखाड़ पाए ना, बाद में कुछ और कर देंगे. कुछ ना कुछ से कहीं ना कहीं तुम्हारा लॉस ही होगा. तो क्या इनका ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा है. सब कुछ ऑफलाइन आने दो एक बार, सुझाते हैं, हमसे मिलेंगे तो फिर समझ आएगा. तुम्हारे ऑनलाइन में ना ध्यान रखना कि तुम कुछ ऐसा कॉलेज के दिन शेयर ना कर दो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो एसएस लेके भेज देते हैं टीचर्स को. इससे ध्यान रखना. मतलब फिर भी यार क्यों पंगे लेने हैं जब पता ही है कि क्लास में हमें हार्म हो सकता है. हम क्यों पंगे ले रहे हैं? शांति से कॉलेज में आओ, मस्ती करो, अपने लेवल की मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, कोई कुछ नहीं कह रहा. अनन्या, जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है ना उसमें अभी हम लोगों ने वो अभी लिंक का इसलिए डाला क्योंकि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं ना, तुम लोग पढ़ रहे होगे तो इसलिए अभी तुमको उसके चक्कर में डाला नहीं है. अभी जैसा फॉर्म है उसको वैसे भर दो, आगे हम तुमको बता देंगे प्रोसीजर. अच्छा guys, this is a very general form for getting your contacts and everything. इसके बाद जो आगे की recruitment process होगा for content and illustrations and graphics and more such things, हम लोग तुम्हारे pieces मांगेंगे, but we have planned कि अभी तुम लोग paper दे लो तो we'll ask for those pieces after 26th ही, जिससे you guys have time to write those अच्छे से and we can also judge you अच्छे से, क्योंकि again you won't write अभी अच्छे, मतलब पुराने pieces उठा कर दे दोगे, that would be so मतलब मजा नहीं आएगा. तो इस वजह से एच इज हर्ष. आई डोंट नो कंप्यूटर का कौन है यार. तुम मेरे को मैसेज कर दे, आई विल कनेक्ट यू. जो कंप्यूटर का हम में से तो आई डोंट थिंक कोई कंप्यूटर का है, बट मेरे को एक बार तो डीएम कर दे. मैं तेरे को एक मेरे फ्रेंड्स है कंप्यूटर में, तो उनसे कनेक्ट करवा दूंगी. तो तेल गिव यू मटेरियल जो भी चाहिए होगा. प्रियांशु बोल रहे कैसे हंसे एंड सेम रुलाएंगे. यार खुश रहो, एंड सेम पढ़ लो, कुछ नहीं है इतना. फर्स्ट सेम तो इजी है यार, कर लोगे आराम से. खुश होके करो, मजे में करो. आईसी के अमोल से बात कर दो. टॉपर है ये इनकी 8 या इनके 9 के अराउंड जीपीए है. ठीक है, उसको आराम से मैसेज कर देना. ये अपनी क्लास का टॉपर है और सीआर की था. बहुत नामन की बात का एडिशन करके मैं कहता हूं कि मैं प्रयास नेबर्स प्रोजेक्ट में वाइस प्रेसिडेंट भी हूं, तो वहां भी कोई होगा तो रिलेट कर पाएगा. हां, कंटिन्यू करो यार, डाउट्स कर रही थी. पब्लिक रिलेशंस का मीनिंग एज इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. यार तभी मैंने बोला, मैंने एक्सप्लेन करा कि पब्लिक रिलेशंस में हम लोग क्या क्या करेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. पब्लिक रिलेशनशिप्स में हम लोग कोलैब्स ला रहे होंगे. हम लोग स्टार्टअप्स, कंपनीज से स्पॉन्सरशिप्स एंड पार्टनर्स ला रहे होंगे बेसिकली फॉर आवर इवेंट, फॉर द मैगजीन एंड फॉर द ओपन माइक, दोनों के लिए. तो ये सारी चीजें पब्लिक रिलेशन के अंदर ही फॉल करती है. उसके अलावा तुम्हारा जो होस्टिंग का काम होता है, तुम्हारा डाउट एंड पीओसी जो बनते हैं सारे इवेंट्स के, मतलब टू आंसर देयर क्वेरीज एंड एवरीथिंग, वो सारा पब्लिक रिलेशन वाले करते हैं. जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो टू कोऑर्डिनेट विद द परफॉर्मर्स एंड ऑडियंस एंड टाइमिंग फिक्स वगैरह, ये सारा काम भी पीआर का ही होता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सी कि लोग किस टाइम आएंगे, या फिर लोग किस तरह कंफर्टेबल है, या फिर लोगों की सारी नीड्स पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है. तो उन सबको बात करना और उसको टीम तक लाना इज
सारा काम ऑफ पब्लिक रिलेशंस की। मतलब बेसिकली तुम अपनी सोसाइटी के बाहर किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो ड्यूटी पीआर की चली जाती है, वेदर इट इज स्पॉन्सरशिप, वेदर इट इज कोलैबोरेशंस, वेदर इट इज गेटिंग एड्स, वेदर इट इज गेटिंग pieces for the magazine, कुछ भी, मतलब मार्केटिंग, पीओसी, एवरीथिंग। आई गेस अब क्लियर हुआ थोड़ा सा। अच्छा, तो मुझे अनन्या का डाउट है कि recruitment form में कोई स्पेस नहीं है where we can share one of our work, for example content and all. ये ले लिया डाउट, हम लोग बोल दिया कि हम लोग बाद में लेंगे ये। हाँ जी बिल्कुल। एंड किरत किरत बोल रहा है गाने चला दिए थे एपीजी हॉल्स में, एपीजे हॉल्स में वीडियो बना रही थी, तो यार मतलब गाने चलाना इट्स स्टिल थोड़ा बेरेबल एंड मतलब ठीक है फिर भी मत करो यार, क्योंकि मतलब गाने चलाने इज ओके है ना, मतलब गाने चलाना तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। फ्रॉम द सीनियर पंगे मतलब बिकॉज़ इंजीनियरिंग कॉलेज है, कभी कभी एंड यहाँ पे जो हमारे जो है डीन्स है और सब, इनके हाथ में बहुत पावर है। तो और दीपांशु बोल रहा है डीयू के अंडर था, अब एनएसयूटी हो गया तो पंगे मत ही लो, मतलब तुम अवॉइड करो, डिग्री मिलने के बाद जो करना करना। मेरा बैच 2018 बैच का हो, तो मेरा बैच आखिरी एनएसआईटी के अंदर, जो अलंकृति नमन का बैच है वो एनएसयूटी का फर्स्ट बैच है। तो जो मेरे अंदर जब चीजें थोड़ी अच्छी थी अब और वर्स हो गई है, बस इतना हो क्योंकि गया। अब इनके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का फुल पावर है, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट हो गए ना, इसलिए ध्यान बिल्कुल। रखना। दीपांशु को एक दो इंसिडेंट्स बता दो। एक तो हमारा लास्ट ईयर का प्रोटेस्ट था, बहुत बुरा हाल हुआ था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, जिसको भी बात करनी होगी प्लीज डीएम कर लेना। हाँ यार, बाद में कर लेना, ये सब चीजें ओके ओके, अरे ठीक है। एनएसयूटी एडमिन हैज एंटर्ड द चैट। हर्ष यार कोई सोसाइटी से रिलेटेड डाउट है तो पूछना, सोसाइटी से रिलेटेड कोई डाउट आया है तुम्हारे मन में, कुछ है तो पूछ लो। और एक सेकंड बता दो, आदित्य गुप्ता पूछ रहा आईसी का भी कोई सीनियर है क्या? हाँ भाई बिल्कुल, हम ही आईसी के हैं। और क्या चाहोगे आप? यार अच्छा। टॉपर भी है, कुछ भी करना है सब बता देंगे। एक और चीज मेंशन करनी थी मेरे को, स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में। जब मैं फ्रेशर आई थी, मेरे साथ के लोग थे जो इंटरेस्टेड थे स्टैंड अप कॉमेडी करने में, एंड जो लोग कुछ लोग करते भी थे, बट सोसाइटी मतलब कॉलेज के अंदर कोई भी सोसाइटी इस स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं थी। आई गेस व्हेन दिस सोसाइटी इज कमिंग इन, तो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए एक प्लेटफॉर्म भी होगा, मेंटरशिप भी मिलेगी बहुत अच्छे से, बिकॉज एज वी सेड कि डीयू सर्किट में हम लोगों के कनेक्शंस हैं, श्रेयर सर के हैं, क्योंकि वो खुद डीयू सर्किट में हैं। तो वी हैव कनेक्शन, विल बी हैविंग मेंटर्स एज वेल, जिसको मेंटर की जरूरत है। हम लोग ओपन माइक्स करेंगे, तो ओपन माइक्स में एनीवन कैन बॉम्ब, एनीवन कैन परफॉर्म मार्वेलसली, तो वो सब चीजें होती है, एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब बहुत कुछ सीखने को जो परफॉर्म करना चाहते हैं उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हम बस लोगों से काम करवा रहे हैं या कुछ भी नहीं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत सारी पार्टीज भी करेंगे, अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज भी करेंगे, बहुत सारे कनेक्शंस भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। बस थोड़ा नई सोसाइटी है एंड वी आर स्टार्टिंग आउट न्यू, तो सीखने का जो स्केल होता है ना वो बढ़ जाता है व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, क्योंकि हम लोग सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग एक नई चीज स्टार्ट कैसे होती है उस चीज को खुद से विटनेस करेंगे। मतलब आई हैव जॉइंड दिस आई गेस 2 months बैक एंड बहुत एक्सपीरियंस मिला है, बहुत कुछ सीखने को इन लास्ट 2 महीनों में ही मिला है, क्योंकि हम लोगों ने एक एक चीज पे सब पूरी टीम में बैठकर डिस्कशंस करी है, सबने एक दूसरे से सीखा है। तो अगेन आई विल जस्ट से कि इट्स वन टाइम अपॉर्चुनिटी, रोज सोसाइटीज भी स्टार्ट नहीं होती है, एंड अ सोसाइटी विच इज न्यू, विच इज नॉट कंपीटिंग विद एनी एग्जिस्टिंग सोसाइटी, ऐसा नहीं है अपने आइडिया कहीं से चुराया है, दिस इज न्यू, दिस इज समथिंग एक्साइटिंग एंड विच विल मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का भी हमारा पूरा एम है ही, मेहनत भी उस हिसाब से करते हैं। तो just give it a thought उस वे में कि how you guys want to go about and everything। तो वो सब चीजें देख लेना। अगेन फाउंडिंग मेंबर हो गए, तुम लोग पास आउट भी हो गए, तो उसके बाद भी यू विल बी लाइक कि जब स्टार्ट हो रही थी तब हम लोग थे वहां पे, अब ये इतना बड़ा नाम है या अब ये ऐसा है वैसा है, सारी चीजें होती है।
सब कुछ करेंगे, अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, इवेंट्स करवाएंगे, छोटे इवेंट्स भी बड़े इवेंट्स भी। हमारा एम है एक सबसे बड़ा इवेंट, एक एनुअल इवेंट अपना करने का, करेंगे वो भी, पहुंचेंगे वहां तक, मेहनत करके पहुंचेंगे, टीम बना कर ही पहुंचेंगे। तो बस ये यार इसने एक ने दीपांशु ने पूछा कि 72% में अटेंडेंस के लिए हो जाएगा, इस पर डिटेल लगाओगे भाई। 75% चाहिए ही चाहिए। 74.7 थी किसी के दोस्त की और वो भी डिटेल हो गया था, तो अटेंडेंस मेंटेन कर लेना। तो गाइस सोसाइटी से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो अभी एट द मोमेंट मीट में। तो बाकी जो जनरल डाउट है वो यार पीएम कर देना, ले लेंगे। Thank you so much, Ananya, for writing such a wonderful comment. So, all over. End करें? सब हो गया तो? हाँ मतलब 3 मिनट में और एग्जैक्ट 8 o'clock we'll just We wind will it up. end. Perfect. Cool. Let's keep it on. Gurkirat, thanks for attending also. Thanks for being the amazing audience. Thanks all for attending. Thank you Harsh. All the best। हमें भी, तुम्हें भी आ जाओ, रिक्रूटमेंट में टीम बनाते हैं, मस्ती करेंगे। So thank you everyone for joining. डिपार्टमेंट्स के लिए भी कर सकते हो अप्लाई, तो कर देना। हाँ वो बिल्कुल कुछ एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में करना हो तो दीपांशु तो ये को शेयर कर देंगे ज्वाइनिंग, ग्रुप में। हाँ हम लोगों ने मैसेज एक बार सर्कुलेट कर ही रखा है, अगेन विल सर्कुलेट दैट मैसेज। हमने मेल भी शेयर किया था व्हाट्सएप का लिंक, और हम व्हाट्सएप भी शेयर कर रहे हैं, तो आपको कहीं से मिल जाएगा। और नहीं मिला तो यू कैन डीएम एनी ऑफ द एडमिन्स अगेन, वी विल बी शेयरिंग इट। या फिर अपनी मेल से लिंक उनको फॉरवर्ड कर देना, वो मेल आई होगी। Also, मैं Manasvi, I'm a math sophomore. We have Alankriti and Naman EC sophomores. All our third years are IC juniors, मतलब third years हैं, सारे IC के हैं, toppers भी हैं। और we have Yash IT का with our team. We have Ritik and Astitwa from PT. तो आसपास सारा covered है, कोई भी doubt हो तो PM कर देना, DM कर देना। दूसरे ग्रुप से भी मिल जाएगा, या किसी का नाम लेकर भी मांगोगे इस आसपास के सोसाइटी ग्रुप्स में, तो कांटेक्ट हमारा मिल जाएगा। अगर नहीं भी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इट्स नॉट एट ऑल अ इशू अ प्रॉब्लम कुछ भी। दीपांशु या कोई एडमिन को आप डीएम करते हो तो वो आपको लिंक दे देगा व्हाट्सएप ग्रुप का। वी कांट शेयर इट हियर, वी विल डीएम यू। कूल, चलो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। हाँ, thank you everyone for joining in. We will be sharing our recruitment form soon. Do apply. The idea is शेयर कर दिया definitely एक बार डाल देना। शेयर कर भी दिया है, एंड ऑल्सो ये QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप लोग कर सकते हो। एंड एक बार हम लोग फ्रेशर्स वाले ग्रुप पे दोबारा डाल देंगे लिंक, तो जिसने नहीं करा ज्वाइन कर लेना। कूल, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। okay. Bye everyone. थैंक यू, बाय बाय।